Hello student, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So student, in this video we are going to have a quick revision of chapter breathing and exchange of gases. If you missed our previous videos, link is in the description, and for more videos like this please do subscribe to our channel. So first you have to understand two terms, one is breathing and other is respiration. So what is breathing? Process of exchange of O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में प्रोड्यूस हुई है उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं विद O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली O2 को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने को ही ब्रीदिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जो हम सेल के लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ऑब्टेन होती है, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेनली डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे वो डिपेंड करेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रह रहा है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। So for lower organisms like sponges, coelentrates or coelentrates and flatworm, the respiratory organ is entire body surface. For earthworm, it is skin or moist cuticle. For insect, it is tracheal system. For fish and aquatic arthropod, it is gills, and for reptiles, bird and mammals, it is lungs. Now we look at human respiratory system and the pathway of it. First we have external nostrils. Nostrils can also be called nares, N-A-R-E-S. Then it will lead us to nasal chamber, then nasopharynx, and through glottis into trachea, and after that there will be bronchi, bronchioles and alveoli, and there is a cartilaginous structure present which is known as larynx. So the pharynx open through the larynx region into the trachea. तो जो pharynx है वो ट्रैकिया में खुलेगा larynx region से होते हुए। Larynx is a cartilaginous box which help in sound production, hence it is called as sound box. Now the opening of trachea, which is known as glottis, it is covered by a elastic cartilage known as epiglottis. It prevent entry of food into the larynx. Next we look at the trachea division into lungs. So trachea will divide into right primary bronchi and left primary bronchi at the fifth thoracic level, and they will lead us to right lungs and left lungs. And now the primary bronchi will divide into secondary bronchi, after that tertiary bronchi, then we have bronchioles, and after that we have alveoli. So trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles all are supported by incomplete cartilaginous ring. So what is the function of incomplete cartilaginous ring? These prevent collapsing when there is low amount of air present in the tract. Next we look at alveoli. Alveoli are irregular walled and vascular bags. Lungs, in lungs we have bronchi, bronchioles and alveoli. तो lungs के अंदर आपको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? bronchi, bronchioles और alveoli. Lungs आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। तो जो लंग्स है उसकी जो कवरिंग है उसमें डबल लेयर है प्लूरा की, एंड अ प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन देम एंड इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग्स। नेक्स्ट वी लुक एट थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर वो चैम्बर है जिसमें लंग्स को रखा हुआ है, एंड इट इज़ अ एयर टाइट चैम्बर। डोर्सली इट इज़ कवर्ड बाय वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड लोअर साइड बाय डायफ्राम। Next we look at respiratory system. So respiratory system is divided into two parts, conducting part and exchange part. In conducting part we include nostrils, pharynx, larynx, trachea, terminal bronchioles. Main function of the conducting part is transport of air to alveoli, remove foreign particle from the air, humidifying, bring it to the बॉडी टेम्परेचर। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है उसमें नोस्ट्रिल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और टर्मिनल ब्रोंकियल तक आ रहे हैं। इनका मेन फंक्शन ये है कि ये एयर को एल्वेलाई तक पहुंचाते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल हैं, डस्ट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको एयर्स में से रिमूव करते हैं। और एयर को, जैसे बाहर की जो एयर है वो ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इक्वल कर देते हैं या ह्यूमिडिफाई कर देते हैं। Now we have exchange or respiratory part.
एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। तो एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट में एल्वियोलाई और उनकी डक्ट्स आती हैं और इनका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना या डिफ्यूज होना बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। Next we look at respiration. So first there will be breathing obviously, then there will be diffusion of gas across alveolar membrane. After that the exchanged gases will be transported to blood, then diffusion across blood and tissue, then after there will be utilization of oxygen for catabolic reaction and release of CO2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, हम ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं यहाँ से, वी आर ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज्ड थ्रू alveolar membrane. After that oxygen will be transported to all part of our body by blood, and after that there will be again diffusion between blood and tissue. The oxygenated blood will transfer oxygen and take up the CO2 from the blood. After that the oxygen which is transferred to tissue by the blood will be utilized for catabolic reaction or cellular respiration, and then there will be generation of CO2, water and energy, as I told you earlier. Next we look at the mechanism of breathing. It involves inspiration, inhale of oxygen, and expiration, exhale of carbon dioxide. So in inspiration, atmospheric air is drawn in. It occurs when intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. मतलब जो आपके पल्मोनरी प्रेशर है या फिर जो आपका लंग्स का प्रेशर है वो कम होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। सो यहाँ पे हम लंग्स का जो प्रेशर है उसको डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, तो बेसिकली वी अल्टर द थोरासिक कैविटी या फिर हम थोरासिक चैम्बर में जो प्रेशर है उसको अल्टर करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन, द फर्स्ट वन इज डायफ्राम। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो थोरासिक चैम्बर की वॉल्यूम है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंक्रीज होगी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम देयर विल बी इंक्रीज इन द थोरासिक चैम्बर वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो देखिए आप एंटीरियर अपने हेड को मान लीजिए एंड पोस्टीरियर अपने लेग रीजन को मान लीजिए। तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से इस एक्सिस में आपका क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वी यूज़ PV = nRT। सो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम देन द प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग। Next we have external intercostal muscle. It increases volume in dorsoventral axis. So it lifts up the ribs and sternum. तो जो external intercostal muscle होती हैं वो ribs और sternum को ऊपर की तरफ खींचती है। जैसे आप एक deep breath लीजिए, if you take a deep breath your lips will be pulled toward upward. So if your back is dorsal and your chest is ventral, so this is known as dorsoventral axis, and external intercostal muscle increase the volume in dorsoventral axis, and again volume increase मतलब प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बेसिकली हमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करना था, विच वी डन विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, एंड देन द एटमॉस्फेरिक एयर विल बी ड्रॉन इन ड्यू टू दिस डिक्रीमेंट इन प्रेशर। नेक्स्ट वी हैव एक्सपायरेशन। In expiration alveolar air is released out, or basically carbon dioxide is released out, occur when intrapulmonary pressure is higher than atmospheric pressure. So expiration में बिल्कुल उल्टा होगा। अब आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या है, ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी डू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड in external intercostal muscle, then diaphragm will return to its normal shape and sternum to their normal position. This reduced thoracic volume, and now the volume is decreased, then pressure will be increased, because I am saying pressure is inversely proportional to volume, and it will increase in intrapulmonary pressure and expiration will take place. A healthy human breathes 12 to 16 times per minute.
Now we look at respiratory volume. So student, I described respiratory volume with the help of a graph in our previous videos, and I will give the link in the description. So please, if you want to understand it more thoroughly, then you can look that video and watch that video. It is a very simple explanation of respiratory volume with the help of a graph. So the volume of air involved in breathing movement can be estimated by a spirometer. So spirometer एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो फर्स्ट वॉल्यूम वी हैव टाइडल वॉल्यूम. सो नॉर्मली द एयर वी इंस्पायर और एक्सपायर इज़ नोन एज टाइडल वॉल्यूम. नॉर्मली आप बैठे हुए रिलैक्स्ड स्टेट में, और जो आप एयर ब्रीथ इन कर रहे हैं और ब्रीथ आउट कर रहे हैं उसको ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है. और टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है. सो फॉर पर मिनट, एंड एज आई टोल्ड यू, वी ब्रीथ 12 times in a minute. We multiply it 12 into 500. It is 600 ml or 6 liter. So per minute tidal volume is 600 ml or 6 liter. Next we have inspiratory reserve volume. Additional volume of air a person can inspire by a forceful inspiration. आप एक forceful inspiration करते हैं, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, तो आप एक forceful inspiration करते हैं. That is known as inspiratory reserve volume or IRV. It is 2500 ml to 3100 ml. Next we have expiratory reserve volume. Additional volume of air a person can expire by forceful expiration. तो tidal volume के अलावा जो हम additional volume expire कर सकते हैं forceful expiration की मदद से, उसको ही हम expiratory reserve volume बोलते हैं. So ERV is average 1000 ml to 1100 ml. Next we have residual volume. तो ये वो वॉल्यूम है जो आप क्या है, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये लंग्स में फिर भी रहेगी. तो द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. इट इज़ अराउंड 1100 ml to 1200 ml. Next we look at some respiratory capacities. First we have inspiratory capacity. So the total volume of air a person can inspire after a normal expiration. तो normal expiration के बाद एक इंसान जितना एयर टोटल क्या है इंस्पायर कर सकता है उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं. एंड इट इंक्लूड टीवी प्लस IRV. तो बेसिकली इट इज़ 3000 to 3500 ml. Next we have expiratory capacity. Total volume of air a person can expire after a normal inspiration. एक normal inspiration के बाद जो person जितना maximum air expire कर सकता है उसको expiratory capacity बोलते हैं. It include TV plus ERV और it is around 1500 ml to 1600 ml. Next we have functional residual volume. वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. एक नॉर्मल एक्सपायरेशन आप कर रहे हैं उसके बाद जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो एयर आपका क्या है लंग्स में रह जाएगी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको FRC बोलेंगे. एंड इट इंक्लूड ERV प्लस RV. नेक्स्ट वी हैव वाइटल कैपेसिटी. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन और वाइस वर्सा. तो आपने एक फोर्स एक्सपायरेशन किया, पूरी एयर आपने लंग से निकाल दी, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम रह गया. उसके बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर आप वापस ले सकते हैं इंस्पायर करके, उसको ही वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है. तो वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड ERV प्लस TV प्लस IRV एंड इट इज़ अराउंड 4800 ml. नेक्स्ट वी हैव टोटल लंग कैपेसिटी. जो पूरा टोटल आपके लंग में कैपेसिटी है एयर को होल्ड करने की, उसको टोटल लंग कैपेसिटी बोल रहे हैं. सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन. मतलब आपने एक लंबी गहरी सांस लिए, पूरा फोर्सफुली इंस्पायर किया, उसके बाद जितना जो आपका लंग्स है वो होल्ड कर पा रहा है उसको TLC बोलते हैं. इट इंक्लूड RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV और यू कैन से VC प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. Next we look at exchange of gases. Exchange of gases take place at two sites. First at alveoli to blood and then between blood and tissue. And it occurs by simple diffusion. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये simple diffusion से होता है. तो there are three membrane present and which are very thin, so it is not a limiting factor. ये कोई limiting factor नहीं है exchange of gases के लिए. Three membranes are alveolar capillary endothelium, alveolar squamous epithelium and basement membrane. So the solubility of carbon dioxide is 20 to 25
टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है और 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। नाउ वी लुक एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन mm ऑफ Hg। सो जिन बच्चों को पार्शियल प्रेशर का आइडिया नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, जो एक सिंगल गैस प्रेशर लगाती है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। सो इन एटमॉस्फेरिक एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 159 and carbon dioxide is 0.3 and it is all in mmHg. Alveoli 104, carbon dioxide 40, deoxygenated blood 40 for oxygen, 45 for CO2, oxygenated blood 95 for oxygen, 40 for CO2, and in tissue it is 40 for O2 and 45 for CO2. Now we look at transport of gases. So first we look at transport of oxygen. 97% of oxygen is transported by RBC in the blood and 3% by the plasma. Okay, so in RBC red color pigment hemoglobin is present. Hemoglobin bind with oxygen to form HbO2. Here is reaction given. Condition which favor the formation of HbO2 or oxyhemoglobin. High PO2 in alveoli, लेस CO2 इन एल्वेलाई। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लो H+ आयन कंसनट्रेशन, लो टेम्परेचर। तो जो कंडीशंस HbO2 के फॉर्मेशन को क्या करती हैं, फेवर करती हैं, वो है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो, H+ आयन या फिर एसिडिटी ऑफ ब्लड क्या है, कम हो और टेम्परेचर कम हो। सो एल्वेलाई में जैसा कि मैंने बताया, एल्वेलाई में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एल्वेलाई में क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 104 है। तो वहाँ पे ये एक फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन इन एल्वेलाई बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज़ 104 एंड इट इज़ मोर देन PCO2. सो नाउ दिस HbO2 will transfer through blood and at tissue level it will dissociate because in tissue there is partial pressure of carbon dioxide is more than partial pressure of oxygen, which is a unfavorable condition of oxygen binding with hemoglobin. तो टिश्यू में जाके हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से क्या है, डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, जो कि एक अनफेवरेबल कंडीशन है फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। नाउ वी लुक एट डिसोसिएशन ऑफ HbO2 इन टिश्यू फेवर्ड बाय। तो HbO2 का डिसोसिएशन टिश्यू में किन फैक्टर से फेवर होता है? लो PO2 जो मैं आपको बता सकता हूँ, हाई PCO2 जो मैंने आपको बता दिया, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। तो एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है टिश्यू में कंपेयर टू एल्वेलाई। एल्वेलाई में हाई PO2 था, लो PCO2 था, लो H+ कंसंट्रेशन था, लो टेम्परेचर था, पर टिश्यू में ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जैक्टली उल्टा है। So every 100 ml of oxygenated blood carries and deliver 5 ml of oxygen to the tissue. Now we look at oxygen dissociative curve. When percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2, it is known as oxidation dissociative curve and it is sigmoid in nature. तो ये आपको याद रखना है कि जब हम एक कर्व प्लॉट करते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का अगेंस्ट PO2 के, तो हमें एक सिग्मोइड शेप का कर्व मिलता है। नेक्स्ट वी लुक एट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इट इज़ 20 to 25%, एज बाइकार्बोनेट इट इज़ 70% एंड डिजोल्व स्टेट इन प्लाज्मा इट इज़ 7%. सो हियर इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमें क्या है समझने की ज़रूरत है। सो हियर यू कैन सी HbO2, हम यहाँ नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। हियर वी सी HbO2 कमिंग फ्रॉम एल्वेलाई विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड एट सेल और टिश्यू लेवल देयर इज़ मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो HbO2 है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा और ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा, सेल के लिए मिल जाएगा, सेल को मिल जाएगा। सेल इसका क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ करेगा। ओके, एंड फ्रॉम सेल वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ऊपर देखिए, सेल से हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विद रिएक्ट विद
वाटर एंड इट विल फॉर्म H2CO3, है ना। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें सेल से मिला, ये आरबीसी में जाएगा, यहाँ ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। नाउ H2CO3 will break down into bicarbonate ion and H plus ion. Now this bicarbonate ion will go into plasma or in blood, and इसको क्या है, न्यूट्रल करने के लिए जो क्लोराइड आयन है वो आरबीसी के अंदर आ जाएगा। और ये जो Hb है ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा। नाउ इट विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर से ऑक्सीजनेट होने के लिए किसके पास जाएगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा। तो इसको एक और बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके पास, सेल के पास। सेल में क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, उसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो गया, ऑक्सीजन किसको मिल गया, सेल को मिल गया, और सेल से आरबीसी को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ बाइंड करके क्या बना लेगा, H2CO3। नाउ दिस विल ब्रेक इनटू बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन, और बाइकार्बोनेट आयन किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा या प्लाज्मा में चला जाएगा, और क्लोराइड क्या है, आरबीसी में आ जाएगा, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और ये जो Hb माइनस है ये H प्लस के साथ बाइंड हो जाएगा, एंड नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन गो टू एल्वियोलाई फॉर ऑक्सीजनेशन। नाउ वी लुक दिस एट एल्वियोलाई लेवल। ओके, सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा HbH है जो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बाइंड करके आया था। एल्वियोलाई लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो HbH है वो क्या है, डिसोशिएट कर जाएगा, और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन क्या बन जाएगा, HbO2। तो देखिए नीचे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, HbH आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था, इसकी वजह से HbH का ब्रेकडाउन हो गया, Hb प्लस H प्लस में ऑक्सीजन बाइंड कर गया, और क्या बन गया, HbO2 बन गया। नाउ ये जो H प्लस आयन है, अब क्या होगा, एल्वियोलाई लेवल पे क्लोराइड आयन वापस से क्या है, प्लाज्मा में चला जाएगा, आरबीसी से बाहर चला जाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन H प्लस आयन के साथ आके बाइंड कर जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, H2CO3 और H2CO3, और फिर से इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा वाटर में और CO2 में। वाटर आरबीसी से बाहर चला जाएगा और CO2 किसके पास चला जाएगा, एल्वियोलाई के पास, और इस एल्वियोलाई क्या करेगा, CO2 को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या है, बाहर एक्सेल कर लेगा। तो एग्जैक्टली अपोजिट हुआ जो सेलुलर लेवल पे हुआ है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ बाइंड करता हुआ एक एंजाइम की वजह से बाइंड करता है, जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोला जाता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में होता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ CO2 को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। नाउ वी लुक एट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। In medulla region, respiratory rhythm center is present and it can reduce the inspiration duration, जिसकी वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी रेट आपका क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा, और बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना, और इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन वी हैव अ कीमोसेंसिटिव एरिया, जो क्या है, किसको सेंस करता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है या H प्लस आयन ज़्यादा हो रहा है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, हम लोग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन को डिटेक्ट करते हैं। वी कैन ओनली डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयन, एंड व्हेन दे इंक्रीज we alter our respiratory rate and try to get more oxygen from the atmosphere. Now we look at disorder of respiratory system. First one is asthma. In it there is difficulty in breathing and there is a wheezing noise because there is inflammation of bronchi and bronchioles. Our respiratory tract is blocked somehow and we can't get enough air. So there will be a wheezing noise and difficulty in breathing. Next we have emphysema. It is a chronic disorder. In this alveolar wall are damaged, और जो respiratory surface होता है वो सिकुड़ जाता है। The surface area of alveoli is reduced and the major cause of emphysema is cigarette smoking. आपने 5-10 साल सिगरेट पी, उसकी वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है वो सिकुड़ गया, मतलब जो एल्वियोलर सरफेस है वो सिकुड़ गया, और अब क्या है, उतना एफिशिएंट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन का।
नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अफेक्ट हुआ है ना। सो इन दिस फाइब्रोसिस ऑफ लंग विल बी देयर। दिस इज़ ड्यू टू रिपीटेड और क्रॉनिक डस्ट कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पे टाइल्स की इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पे टाइल्स वगैरह की कटिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है बेसिकली जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता रहता है, और वो क्या है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इकट्ठा होता रहता है, जिससे लंग्स का क्या है फाइब्रोसिस हो जाता है। लंग्स बेसिकली फंक्शनल नहीं रह पाते अगर लंबे टाइम तक ये चलता रहे, और अगर आप क्या मेजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हो उसको क्या है काउंटर करने के लिए। एग्जांपल्स आर सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग वर्कर्स। So student, this is it. If you like this video, please share this video and like and subscribe to our channel to support us. Thank you very much.